Good morning, students. Welcome to our VVPS e-learning classes, and this is your maths class. Today we continued exercise 2.2 from question number 11. So today's class work, question number 11 from exercise 2.2. Today's date is 20 May 2020. Question number 11. The difference between two positive integers is 36. The quotient when one integer is divided by other is 4. Find the two integers. बेटा word problem solve करने का जो तरीका है, first you have to write down the equation for the particular problem. और ये equation अगर आप सही लिखोगे तो आपके लिए solution निकालना आसान हो जाएगा. So read the question very clearly. उसका मतलब समझिए और इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कीजिए. फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 36. तो मतलब एक नंबर बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा. लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू x. तो बिगर नंबर क्या होगा? x प्लस 36. जरूरी नहीं है आप स्मॉलर नंबर को ही x लो. इफ यू अज्यूम दैट द बिगर नंबर इज x, देन द स्मॉलर नंबर विल बी x minus 36 because the difference of these two is equal to 36. So from the first line we can assume the numbers. Now the second line, the quotient when one integer is divided by the other is 4. Quotient means दोनों को डिवाइड करेंगे उसका जो आंसर आएगा. So we are dividing the bigger from smaller. Bigger number is x plus 36. Smaller number is x. इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 4. You can solve this equation. Solve it. Find x. There are two answers. One is a smaller number, other is the bigger number. जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका x की वैल्यू आएगी तो that is the smaller number. उसके साथ 36 ऐड करके आपको सेकंड नंबर या बिगर नंबर मिल जाएगा. तो मैं आज सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ दूंगी. यू हैव टू सॉल्व इट नाउ. क्वेश्चन नंबर 12. द प्राइस ऑफ 3 tables and 5 chairs is rupees 7,050, but a table cost rupees 150 more than a chair. Find the price of each. So from this line, a table cost rupees 150 more than a chair. तो हम एक को x मानेंगे. लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू रुपीज x. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू कितना ज्यादा है? 150 मोर देन. So x plus 150. So from this line we can write the price of one chair is x and the price of one table is x plus 150. Now 3 tables. One table का प्राइस है x plus 150. So 3 tables का प्राइस कितना होगा? 3 into x plus 150. और 5 chairs. एक चेयर का कॉस्ट है x, तो 5 चेयर्स का कॉस्ट है 5x. द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 7050. टोटल कॉस्ट मतलब तीनों को प्लस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 7050. सॉल्व इट. यू विल फाइंड x मीन्स यू विल फाइंड कॉस्ट ऑफ वन चेयर. उसके साथ 150 ऐड करोगे देन ओनली यू कैन फाइंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल. सो आफ्टर दिस यू कैन सॉल्व बाय योर ओन. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. The length of a rectangle exceeds its breadth by 4 centimeter. Length exceeds its breadth by 4 centimeter. Exceeds means बढ़ना, ज़्यादा होना. So let breadth equal to जो छोटा है उसको आप x मानोगे तो आसान रहेगा. Let breadth equal to x. तो length कितना होगा? x plus 4. तो उसका एरिया कितना होगा?
एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ. सो x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x. x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 4x. नाउ सिर्फ पहला लाइन से हमने इतना कुछ लिखा. नाउ द सेकेंड लाइन. इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ईच आर इंक्रीज बाई 3 सेंटीमीटर. लेंथ एंड ब्रेथ दोनों 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ. सो व्हेन इंक्रीज्ड द न्यू लेंथ इज इक्वल टू, पहले x था, कितना हुआ? x प्लस 3. सॉरी, दिस इज न्यू ब्रेथ. एंड द न्यू लेंथ इज इक्वल टू, पहले कितना था? x प्लस 4, इसके साथ कितना इंक्रीज हुआ? 3. दैट मीन्स x प्लस 7. सो न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू x प्लस 3 and new length is equal to x plus 7. So new area is equal to length into breadth. Again the formula, length is x plus 7, breadth is x plus 3. इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर हर टर्म के साथ अंदर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस अब 7 के साथ 7x प्लस 21 which is equal to x square plus 10x plus 21. So original area is x square plus 4x. New area is x square plus 10x plus 21. अब हम थर्ड लाइन पे जाते हैं. The area of the new rectangle will be 81 square centimeter more than that of the given rectangle. So new area according to question, new area means x square plus 10x plus 21. New area is 81 square centimeter more than given rectangle. Given rectangle का एरिया क्या है? x square plus 4x. इन दोनों में कौन ग्रेटर है? The new area is greater. कितना ग्रेटर है? 81 square centimeter. So this is the question जिसको मुझे सॉल्व करना है. दोनों तरफ x square है, we can cancel it. 4x come to left side. 10x minus 4x. 21 moves to right side. 81 minus 21. So 6x equal to 60. Therefore x equal to 10. X equal to 10. What is x? X is the breadth. So therefore breadth is equal to 10 centimeter and length is equal to, कितना लेंथ है? x plus 4 means 10 plus 4 14 centimeter. Now check your solution. Check your solution means अगर ये लेंथ ब्रेथ है, इसका एरिया कितना होगा? 10 into 14 140. दोनों 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, तो फिर उसका नया एरिया क्या होगा? 13 into कितना 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ? 13 into 17 मल्टीप्लाई कर लीजिए. देखिए जो नया एरिया है वो पुराने एरिया से 81 सेंटीमीटर ज्यादा है या नहीं है. नाउ नेक्स्ट टू क्वेश्चन, दैट इज योर होमवर्क. अगर सॉल्व कर पाते हो वेरी गुड, नहीं कर पाते हो मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूं. यहां पर 3 प्राइजेस है. अगर आप फर्स्ट प्राइज को x मानोगे तो सेकंड प्राइज कितना होगा? सेकंड प्राइज 5/6 ऑफ द फर्स्ट प्राइज, मतलब 5/6 ऑफ द फर्स्ट प्राइज ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. और थर्ड प्राइज क्या होगा? 4/5 ऑफ द सेकंड प्राइज. 4/5 ऑफ द सेकंड प्राइज मीन्स 5x by 6. इसको कैंसिल करोगे तो 2x by 3. ये है 3 प्राइजेस, इसका सम है 150. x निकालोगे और इंडिविजुअली प्राइस निकालोगे. लास्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल है एक. वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. एक एंगल है, दो एंगल का समेशन के बराबर. रेशियो ऑफ द अदर टू एंगल इज 4:5. That means one angle is 4x, second angle is 5x, and third angle is sum of these two angles.
then find the angles. So this two are your homework. Try to your own. नहीं आएगा तो मैं क्लास में हेल्प करूँगी. Thank you class.